centimeter high object is placed at ये वाले किए हैं online students. Have you all done these questions? Yes, ma'am. Okay. A 1 centimeter high object is placed at a distance of 2f. What is the height of the image form? Object कहाँ रख रहे हो? 2f पर. Object की height आपकी image की height के equal हो जाएगी. It's a concept. तो आपका पूछा गया है what is the height of the image form? Very good. HI is equal to -1 centimeter. If the image formed by a convex lens is of same size as that of object, what is the position of the image with respect to lens? If the image formed by the convex lens is same as that of same size है, तो position of image कहाँ होगी? Online students unmute and answer. If an object is placed at the focus of a convex lens, the image formed is infinity. Where should an object be placed in order to use convex lens as magnifying glass? Focus. Yes. Where should an object be placed in order to use convex lens as a magnifying glass? Optical center and focus. Yes, between C and F. Where should an object be placed in front of the convex lens so as to obtain its virtual, erect, and magnified image? Yes. Within the focus. Where should an object be placed in front of the convex to virtual? So that is again C and F. Object को कहाँ रखोगे in front of convex lens to get real, inverted, and magnified image? 2f के अंदर अंदर रखना पड़ेगा. Yes. Beyond 2f, no. छोटा हो जाएगा. Between f and 2f. If an object is at considerable distance, that is infinity, in front of the convex lens, where is the image formed? अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बनेगी? बनेगी. Given, draw a given diagram in your answer book. Complete it for the path of rail of light through the lens. ये इस टाइप के क्वेश्चन आर सुपरली इंपॉर्टेंट. ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं. तो इफ द incident ray is parallel to principal axis, then refracted ray will pass through the focus. So this is rule number 1. ये कौन सा रूल है? Rule number 1. What type of lens would you use as a magnifying glass? How close the object must be to the lens? Yes, less than 2f. Less than 2f तक रखोगे, right? Between C and 2f. रेंज क्या होनी चाहिए मैग्निफिकेशन की? Between ऑप्टिकल सेंटर एंड ट्वाइस द फोकल लेंथ. क्योंकि 2f पर आते ही ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा? सेम साइज. उसके पीछे कैसा होता जाएगा? डिमिनिश. आर वी सॉर्टेड? सबसे ज्यादा मैग्निफाइड सी और एफ के बीच. What type of lens would you use? अच्छा ये हो गया. Name 2 factors on which the focal length depends. Focal length किस पे डिपेंड करेगी बताओ? फैक्टर्स बताने हैं बेटा. फोकल लेंथ किस पे डिपेंड करेगी? क्या लेंस का फोकल लेंथ चेंज हो सकता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से? नो. जो फोकल लेंथ होता है दैट इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी.
फोकल लेंथ कैसा क्वांटिटी होता है? फिक्स। एक लेंस आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करोगे तो इमेज की पोजीशन चेंज हो जाएगी और इमेज का साइज चेंज हो जाएगा, बट फोकल लेंथ क्या रहती है? सेम रहती है। तो ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जिसपे फोकल लेंथ डिपेंड करती है? Ma'am, can I try? यस बेटा बोलिए। Ma'am, if we change the aperture of the lens, वेरी गुड, aperture of the lens can affect the focal length. What else? Mom, can refractive index can affect? You are right, but partially right. Refractive index depends upon the nature of the material. So the nature of the material which the lens is made up of depicts the changes the focal length of the lens. So two things. The two factors are, first is aperture and second one is nature of material. बिकॉज ग्लासेस भी एक नहीं होते, ग्लासेस भी बहुत सारे होते हैं। आपने पढ़ा था ना, प्रिंट ग्लास, क्राउन ग्लास, ग्लासेस भी बहुत सारे होते हैं। सो इफ यू चेंज द मटेरियल द फोकल लेंथ विल ऑल्सो चेंज। आर वी सॉर्टेड एवरीवन? एपर्चर का मतलब हमने पढ़ा था। एपर्चर का मतलब द पार्ट ऑफ द लेंस और द मिरर जिसपे रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हो सकता है। मिरर का या लेंस का वो वाला पार्ट जिसपे रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं हम? एपर्चर। साइज ऑफ द मिरर और साइज ऑफ द लेंस भी कौन डिसाइड करता है? एपर्चर। ये हमने कर लिया है सबने। Okay, let's discuss quickly. A convex lens has a focal length of 10 centimeter. At which of the following positions should an object be placed so that this convex lens act as a magnifying glass? option B, 7 centimeter. 25 क्यों बोल रहे हो अब? Which one of the following material can be used to make? Cannot Clay. plate, क्योंकि ये opaque object है, ठीक है? And a small bulb is placed at a focal point of the converging lens. When the bulb is switched on, the lens produces A converging beam of light. a small bulb, yes, a parallel beam of light, right? Because focus पे रखते हो तो कैसे जाता है? Parallel. An illuminated object is placed at a distance of 20 centimeter from a converging lens of focal length 15 centimeter. Illuminating का क्या मतलब है? Lit up. Right. Illuminated object is placed at a distance of 20 centimeter from a converging lens. Focal length क्या है? 15 centimeter. The image obtained on the screen is Inverted and magnified. inverted. Object is placed between F and 2F. Object को कहाँ रख रहे हो? F और 2F के बीच में. Which of the following statements correctly describe its image? Real and larger than the object. 2F के बीच में रख रहे हो आप. Real होगा और larger than the object होगा. Which of the following can make a parallel beam of light when the light from the bulb falls on it? Concave mirror and convex lens. Next, a converging lens is used to produce an image of an object. एक converging lens है जिससे आप क्या बना रहे हो? क्या बना रहे हो? एक image बना रहे हो screen के ऊपर. What change is needed for the image to be formed nearer to the lens? D. Answer. इनको पढ़ो, ब्रेक करो. Converging lens है used to produce an image of an object on screen. स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट बनाना है. क्या चेंज आपको करना होगा?
to get the image to be formed nearer the lens. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जितना इंक्रीज करोगे इमेज उतनी पास में आ जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर. रियल इमेज बन रही है सेम साइज की. सेंटीमीटर ब्रश हो रखी है. अ वर्चुअल इमेज या ये 16 सेंटीमीटर्स कैसे हुआ? रियल इमेज है सेम साइज की है. फोकल लेंथ 8 है तो सेम साइज की रियल इमेज कहाँ बनती है? डबल ऑफ फोकल लेंथ. तो उसको कहाँ रखोगे? 16 सेंटीमीटर पर. अंडरस्टूड. ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस पूछा है. अच्छा सॉरी, मैंने उससे देख लिया. एक सेकेंड. ऑब्जेक्ट और इमेज, तो ऑब्जेक्ट आपका 16 पर है, देन इमेज विल आल्सो बी एट 2f. 32 सेंटीमीटर. 32. 16 plus 16 32, राइट. मैंने ही दूसरा पढ़ लिया. वो वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज. A virtual erect and magnified image of an object is to be obtained with convex lens. For this purpose, the object should be placed कहाँ रखें? Between f and optical center. Virtual erect चाहिए. Burning candle whose flame is 1.5 centimeter tall is placed at a certain distance at 2f. Right. At 2f. और किए थे. लेंस जिसका फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, इरेक्ट इमेज चाहिए 3 टाइम्स. तो क्या करोगे? ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे? एट 8 सेंटीमीटर. वर्चुअली इरेक्ट इमेज चाहिए तो विद इन एफ रखोगे. तो एफ आपका 12 है. 12 से छोटी वैल्यू क्या है? 8 सेंटीमीटर. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर वी एक्टिव? रायन क्या कर रहा है? सीधे बैठो. प्रांजल, चित्रांशा, आप दोनों ने क्वेश्चंस नहीं किए. आई कुड ओनली हियर आराध्या. बेटा वर्चुअल इरेक्ट है तो सी और एफ के बीच में रखना है ना हमारे यहाँ. अच्छा हमने फिर उल्टा पढ़ा है क्वेश्चन. रुक जाओ, सॉरी मेरा ध्यान दो जगह जा रहा है. रुक जाओ. हमने फिर उल्टा पढ़ा है. फोकल लेंथ 12 है, इरेक्ट इमेज है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज तो 12 से कम होगा ना बेटा. तो 12 का डबल क्या हो रहा है? 24. 36 भी नहीं होगा, राइट. तो 16 इज द राइट आंसर. हाँ, कई बार यहाँ फ्लैश पड़ती है, मेरे को नहीं दिख रहा. ओके. इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 21 सेंटीमीटर from converging lens, the image formed is slightly smaller than the object. If the object is placed 19 centimeter from the lens, the image is. मुझे पहले पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो क्वेश्चन. The image formed is slightly larger than the object. The approximate focal length of the lens is 20 सेंटीमीटर. एक ऑब्जेक्ट कितना है? 21 सेंटीमीटर पे रखा गया है. द इमेज फॉर्म इज स्लाइटली स्मॉलर. जो इमेज बन रही है वो क्या है? स्मॉलर है. तो स्मॉलर इमेज मतलब कहाँ रखा गया? 2f के बाहर हो गया, राइट. इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 19 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, द इमेज फॉर्म इज स्लाइटली लार्जर. तो मतलब ये f के अंदर हो गया. The approximate focal length will be.
2f से बाहर हो रहा है तो वो छोटा होगा, 2f के अंदर है तो वो बड़ा होगा। तो खुद सोचो ना, तो 2f स्लाइटली 21 पे स्लाइटली स्मॉलर हो गया, 19 पे स्लाइटली लार्जर हो गया, तो 2f क्या हो गया 20। और आपसे फोकल लेंथ पूछा है तो 20 का हाफ इज 10। समझ आया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑब्जेक्ट पहले मैम 20। ये समझ नहीं आया कैसे करा। ये समझ नहीं आया कैसे करा? देखो, ये आपके पास लेंस है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होता है, यहाँ एफ होता है, यहाँ 2f होता है। वो कह रहा है कि 2f मतलब जब आप 21 सेंटीमीटर पे रखते हो तो इमेज स्लाइटली छोटी हो जाती है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाओ, इमेज छोटी कब होगी? जब 2f से बाहर रखोगे। तो मतलब यहाँ पे कहीं 21 सेंटीमीटर है, और सेकेंड सिचुएशन में बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट 19 सेंटीमीटर पे रखते ही इमेज बड़ी हो जा रही है, मतलब वो 2f के अंदर है 19 सेंटीमीटर पर। तो 2f हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 2f क्या होगा 20 सेंटीमीटर। पूछ रहा है आपसे फोकल लेंथ, फोकल लेंथ पूछ रहा है तो फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ 2f, तो कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। इज दिस सॉर्टेड? यस मैम। ये वाला ओके। लेंस जिसका फोकल लेंथ क्या है 46 पे एक बार दोबारा समझ रहे हैं, देयर इज वन रिक्वेस्ट। 46 में वो क्या बोल रहा है बेटा? ये हमारे पास एक लेंस है, ये सी हो गया, ये एफ हो गया, इसकी फोकल लेंथ कितनी बोल रहा है वो 12 सेंटीमीटर बोल रहा है। इरेक्ट इमेज बन रही है 3 टाइम्स, इरेक्ट इमेज बन रही है 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट? द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। इरेक्ट इमेज कब बनेगी? जब ऑब्जेक्ट कहीं इन दोनों के बीच में होगा, मतलब लेस देन 12 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट होगा, राइट? तो अब वो कह रहा है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस बताओ। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी आपका एफ हो गया, और यहाँ पे 2f हो गया, यहाँ पे भी 2f हो गया। तो जब आप एफ और सी के बीच में रख रहे हो तो आपकी इरेक्ट इमेज बनेगी, ठीक है बच्चा? अब ऑप्शंस में देखो, इसमें एलिमिनेशन लगाते हैं। तो 12 का डबल 12 इज द फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ पे रखते ही इमेज कैसी हो जाएगी इन्वर्टेड, कैसे हो जाएगी इन्वर्टेड। तो मतलब लेस देन 12 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेस देन 12 सेंटीमीटर के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है? एक तो एक 10 होगा, 8 होगा, 9 होगा, ऐसे करके होगा। बट आपसे पूछा क्या गया है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालोगे? अगर 12 का डबल करते हो तो 2f 24 हो जाएगा, क्योंकि अगर 2f पर ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इमेज भी 2f पर बनती है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो इससे बड़ी वाली वैल्यू भी रॉन्ग हो गई, और ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कौन सा बचा 16। फॉर्मूला से कर लो, नहीं तो लॉजिक से कर लो, दोनों से हो जाएगी। दोनों से कर सकते हैं बेटा, क्योंकि एमसीक्यू है। मैं आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो और आप कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। इज दिस क्लियर? 46 47 सबको क्लियर है? यार क्वेश्चन नंबर 48, एक ऑब्जेक्ट है which is placed at an object is placed at the following distance from the convex lens of focal length कितना है 15 सेंटीमीटर। इस टाइप का हमने क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी किया था, ठीक है? विच पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल प्लेस, प्लीज रेज हैंड, जिससे सभी बच्चों को चांस मिले कि कौन कौन बच्चा आंसर कर सकता है और मुझे भी पता चले, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। रेज हैंड। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो विच इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? इनमें से कौन सी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड रियल इमेज बनाएगी? मैग्नीफाइड रियल इमेज। यस शौर्य बोलो। 20 सेंटीमीटर, ऑनलाइन स्टूडेंट्स 20 सेंटीमीटर करें।
यस 20 सेंटीमीटर इज करेक्ट, क्योंकि मैग्नीफाइड चाहिए और रियल इमेज चाहिए, तो 2f के अंदर अंदर रखेंगे। 2f के अंदर अंदर कौन सी पोजीशन होती है? f एंड 2f, तो f 15 है, तो इट शुड बी लेस देन 30, तो लेस देन 30 क्या होना चाहिए? 20, और इट शुड बी मोर देन 15। पोजीशन कैसी होनी चाहिए? मोर देन 15 एंड लेस देन 30, ठीक है। सो दैट इज 20 सेंटीमीटर। मैग्नीफाइड और वर्चुअल चाहिए, मोस्ट इजी है। मैग्नीफाइड और वर्चुअल चाहिए। यस पावनी। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कौन आंसर करेगा? परियोल बोलो। मैम 10 सेंटीमीटर। ओके, रीजन दो, क्यों 10 सेंटीमीटर? रीजन दो बेटा, जल्दी परियोल। मैम मैम क्योंकि 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर से कम है, और जो मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनती है, और जो भी गिवन ऑप्शंस है उनमें से 15 से कम से 10 सेंटीमीटर है। See, it should be, it should be less than 15 centimeter. So that is 10 centimeter. Diminish चाहिए और real चाहिए। Diminish चाहिए और real चाहिए। दीक्षा बोलो। Is she correct? Yes. Online students, who will answer me? Kritika, answer third option. फटाफट से third answer कीजिए। Next is Kanishka. Fourth के लिए ready रहना Kanishka. Ma'am, is it 35? Give reason. जतिन बेटा। Ma'am, because object is placed beyond 2f. The object is Placed beyond 2f. she correct? The object is beyond 2f. कनिष्का जल्दी बताओ बेटा। मैम 30 सेंटीमीटर, बिकॉज जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो उसके इक्वल होनी चाहिए फोकल लेंथ। चल होनी चाहिए, सेम साइज है, तो कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए कनिष्का? बियॉन्ड 2f। नहीं, एट 2। एट 2f, यस एट 2f। फोकल लेंथ 15 है, तो ये कहाँ होना चाहिए? 30 सेंटीमीटर। When an object is placed at a distance of 36 centimeter from a convex lens, an image of same size as that of object is formed. What will be the nature of image formed when the object is placed at a distance of 10 centimeter? तो 36 सेंटीमीटर पे रख रहे हो, तो इमेज कैसी बन रही है? क्वेश्चन को रीड करो। सर आप स्क्रीन की तरफ नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बेटा। मैम मैं बुक में पढ़ रहा था मैम थोड़ा सा। तो आप क्लास लीड करो और आराम से बुक पढ़ो। सॉरी मैम। डेली सॉरी? आपको इतने दिनों से क्लास लेनी नहीं आ रही? फादर से बात करो, मैं अलाउ नहीं करूंगी। When an object is at a distance of 36, तो इमेज कैसी बन रही है? सेम साइज। तो मतलब ये 36 सेंटीमीटर क्या है? 2f पर है, राइट? तो नेचर ऑफ इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, मतलब f क्या होगा? 18 होगा। ये कैसा होगा? आपको बोलेगा नहीं। 20 सेंटीमीटर। अदिति आंसर करो। 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। सेकंड पार्ट आंसर करो अदिति जल्दी से। Real and inverted. Real and inverted. Will it be magnified or diminished?
Will it be magnified or diminished? सेम साइज 36 पर हो रहा है, तो F18 है। ये पोजीशन कौन सी है ये बताओ आप मुझे, कौन सी वाली पोजीशन है ये 6 पोजीशंस में से, कौन बताएगा मुझे ऑनलाइन? पोजीशन कौन सी है ये, अभिषेक बताओ ना। करेक्ट। तो भी कौन सी पोजीशन, क्यों, एक्सप्लेन कर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कौन सी पोजीशन है ये? Ma'am, can I? Yes, At why it is Ma'am, active? it's No, between 2F and F. हाँ, एट 2F वाली पोजीशन वापस से फ्रेम करो, 2F वाली पोजीशन 36 सेंटीमीटर है, तो F F वाली is 18. 18 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर क्या हो गया, 18 और 36 के बीच में आता है, तो क्या हो जाएगा F एंड 2F। F और 2F के बीच में कैसी इमेज बनती है, Enlarged. Yes, ma'am. यस। तो बेटा आप केसेस ही नहीं करोगे तो कैसे होगा, रियल, इन्वर्टेड एंड magnified. Draw a diagram to show the how converging lens focuses parallel rays of light. कैसे बता दो कि सिंपल सा डायग्राम है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, राइट, तो पैरेलल इंसिडेंट है। Yes, after refraction they converge at a single point. And where do they meet? They meet at Focus. right. This is C and here also this is F. नहीं. How would you alter the above diagram to show how converging lens can produce a parallel beam of phase of light? If light emerges from the focus, they refract in the parallel direction. Can we move forward towards the numericals? ये सब हमने कर लिया था लास्ट क्लास में। न्यूमेरिकल्स किए थे नहीं किए थे? ऑनलाइन स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स किए हैं? 50। हम उससे बात करके जाना है, क्योंकि 10 नहीं चलेगा बेटा, क्लास खराब होती है, मम्मी को पेन नहीं समझ में आएगा, आप ही को आएगा। कहाँ तक किए हैं ये वाले न्यूमेरिकल्स बता दो। आज करोगे? अभी करो, चलो 30 मिनट्स न्यूमेरिकल्स करो करो। कौन सी बुक? ये तो मुझे चाहिए हो गया हाथ से। जी मैम। यस सिद्धांशा। मैम मेरे को ये अभी भी समझ नहीं आया कि एएफ पे और मतलब ये कहाँ कहाँ पर मतलब रखनी है, इसको कैसे निकालने हैं फॉर्मूला से। तो बता, एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप रख रहे हो कितने डिस्टेंस पर, 100 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे रख रहे हो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 100 होगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, ये तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। आगे पढ़ो, फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस, तो ये पता होना चाहिए कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है बेटा, बताइए आप। फंक्शन नहीं है, आप सब अपने अपने करो, बोलो बेटा जल्दी बोलो।
converging lens, convex lens, कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ क्या है 40 40 सेंटीमीटर। तो centimeter. ध्यान रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव 40 सेंटीमीटर। आपसे नेचर ऑफ इमेज पूछ रखा है। नेचर हमेशा पता चलता है नेगेटिव या पॉजिटिव से, ठीक है। तो उसके लिए सेकंड निकालेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब वी पूछ रहा है वो आपसे। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? कौन ये 9 है यार, क्या भेजे? बोलो। 1 upon u minus 1 upon v equals to 1 upon f. गलत बोल रहे हो बेटा, फॉर्मूला ही गलत बोल रहे हो। इसमें क्या समझना और क्या नहीं समझना, जब आप फॉर्मूला ही नहीं याद करके बैठे हो। लास्ट पूरी क्लास इस फॉर्मूले पे दी गई है। 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू की जगह यू और बी की एफ की जगह एफ। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 1 अपॉन 100 इक्वल्स टू 1 अपॉन 40। 1 अपॉन बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 40 माइनस 1 अपॉन 100। एलसीएम क्या आएगा दोनों का? 200। दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 200। तो क्या हो जाएगा बेटा? दिस इज 5 माइनस 2, 3 अपॉन 200। ये किसकी वैल्यू आई है? बी की। V upon v equals to minus. तो V पॉजिटिव होने का क्या मतलब है? आपने कर ली ना? The image will be real and inverted. मैम Yes बेटा। मैम ऐसे आंसर आए तो हर आंसर को ऐसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है, फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं? फ्रैक्शन में फाइनल आंसर कभी भी नहीं छोड़ना, डेसिमल में कन्वर्ट करना ही करना है। तो आपका क्या हो जाएगा? -15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ के लिए V भी चाहिए, हमें पता है मैग्निफिकेशन है V अपॉन U। तो -3 इज इक्वल टू V अपॉन -15। V इज इक्वल टू +45 सेंटीमीटर। अब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? लेंस फॉर्मूला, which is 1 upon V minus 1 upon U equals to 1 upon F. 1 upon 45 minus 1 upon -15 equals to 1 upon F. So 1 upon 45 plus 1 upon 15 equals to 1 upon F. So 45 is Ma'am, the answer is 11.25 centimeter. 4 upon 45 to 1 upon F. F is equal to 45 upon 4, 11.25 centimeter. Next करो। आदित्य नेक्स्ट आंसर मुझे आपसे चाहिए, जल्दी करो। एक ऑब्जेक्ट है जो 5 सेंटीमीटर हाई है, मतलब HO क्या है? 5 सेंटीमीटर। उस ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रखा गया लेंस से? 25। तो U क्या हो गया? -25 सेंटीमीटर। उसका फोकल लेंथ क्या है? +10 सेंटीमीटर। पोजीशन नेचर ऑफ इमेज चाहिए, तो पोजीशन इज V चाहिए, V से नेचर पता चल जाएगा। तो क्या करोगे? यस। पोजीशन साइज भी चाहिए, HI भी चाहिए। तो 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। बी क्या है? चाहिए -1 अपॉन -25 इक्वल्स टू 1 अपॉन 10। 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन
1/10. 1/10 minus 1 upon LCM is 50. 5 minus 2. 1 upon B, 3 upon 50. B equals to 50 upon 3. That is equal to 16.66 सेंटीमीटर. तो ये पॉजिटिव है. पॉजिटिव से नेचर कैसा आएगा? रियल एंड इन्वर्टेड. अब ऐसे ही एच आई निकालो. क्या होगा? एच आई, यस, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू बी अपॉन यू. जल्दी जल्दी करो. मैम जल्दी. यस बेटा, मैम मैम मैंने आंसर निकाल लिया मैम एच आई का भी. बताइए. मैम एच आई का आंसर है -3.33. इधर से मैम आप निकाल के देख लो मैम. निकाल रही हूँ. हाँ, माइनस तो नहीं आएगा प्रांजल, क्योंकि रियल इमेज है. रियल इमेज इज डाउनवर्ड ना, तो नेगेटिव है तो आएगा मम्मा. बी अपॉन यू. यू इज -25. बी क्या था हमारा? यस, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है. वर्चुअल रियलिटी में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है. ओके, ओके. अच्छी तरह बाहर से है. हमारा क्या था? 16.66. हम उसको क्या लिखते हैं? यस, एच आई अपॉन 5 इक्वल्स टू 50/3 इंटू 25. तो ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स. तो एच आई इज इक्वल टू 10/3 विच इज इक्वल टू 3.33 सेंटीमीटर. मैम आपने 25 का माइनस तो लगाया ही नहीं. लगाया बेटा, लगा दिया. ऊपर कट किया था तो मेरे से मिस हो गया. चलो, 2 और न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, उसके बाद वी आर स्टार्टिंग विद बायोलॉजी. 19 तक चलते हैं फिर. आंसर बताओ जल्दी से. मैम अदिति, आंसर इज -72. -72. अभी तो मैंने दिया है. आपने इतनी जल्दी कर लिया? आर यू डूइंग योर सेल्फ? यस मैम फोकल लेंथ के उससे फॉर्मूले से करा है मैम ये. अच्छा, भेजो जरा, कहाँ कर रहे हो? शेयर ओके ऑन मैम भेज रहा हूँ. नथिंग टू टॉक अबाउट. ठीक है, भी हो रहे हैं न्यूमेरिकल. ये न्यूमेरिकल है एक पेपर में. टेंथ एंड 11 जून विल बी योर मॉक एग्जाम. 12th विल बी रिजल्ट डिक्लेरेशन. उससे पहले पहले मैं आपको सिलेबस बता दूं कि व्हाट ऑल थिंग्स वी विल बी कवरिंग. लाइट फिनिश कर देंगे. ह्यूमन आई फिनिश कर देंगे. सेकेंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री फिनिश कर देंगे हम, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. हाँ, एसिड बेसिस सॉल्ट में ज्यादा टाइम नहीं लगता, मैक्सिमम 4 क्लास लगती है. ह्यूमन आई में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता, 3 to 4 क्लासेस चैप्टर इज फिनिश. मैथ्स में ट्रिगो कर देंगे, क्वाड कर लेंगे. क्वाड के बाद ट्रायंगल्स आई हैव टू स्टार्ट.
क्वाड के बाद क्वाड करेंगे ट्रिगो के बाद पहले, फिर उसके क्वाड के बाद अगर टाइम बचेगा तो फिर हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो करेंगे। और जुलाई जैसे जून के ब्रेक के बाद जब रीओपन होगा तो वी विल बी स्टार्टिंग विद ट्रायंगल। 13 जून टू मोस्ट प्रोबेबली 23rd, तो 24 25 से क्लासेस विल रिज्यूम। 24 और 25 मुझे अभी नहीं पता। Ma'am, is the answer 74? 72 72 Minus 72 centimeters. Yes, yes, beta. Yes. 1/3 is the magnification. Minus 1/3 is the raise your hand, those who are all are getting. What about rest of the class? At what distance should an object be placed? तो U पूछ रहा है आपसे। फोकल लेंथ आपकी +18 सेंटीमीटर है। To obtain an image जो 24 सेंटीमीटर है on the other side. On the other side मतलब on the opposite side. तो V क्या हो जाएगा? +24 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछ रहा है? मैग्निफिकेशन। तो पहले लेंस फॉर्मूला यूज करो। F क्या है? 18। V क्या है? 24 minus 1/u. 1/18 minus 1/24 equals to, so the LCM will be 72. That is 3 minus 4 minus 3 equals to minus 1/u. 1/72 equals to minus 1/u. U equals to minus 72 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन के लिए इट इज V/U। V आपका है 24, U है आपका -72, तो मैग्निफिकेशन इज 1/3। -1/3। क्वेश्चन नंबर 19 पर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मुझे एक बच्चे ने डाउट बोला है, पहले क्वेश्चन नंबर 19 पर जा रहे हैं, उसके बाद वी विल बी स्टार्टिंग विद बायो। ठीक है, होपफुली आज हम टाइम से फिनिश कर देंगे। द फिलामेंट ऑफ द लैम्प, अच्छा एवरीवन काम डाउन, पे अटेंशन। हाँ हाँ, कॉन्टेक्ट लेंस पहले बायो करेंगे बेटा, वो छोटा सा टॉपिक है। The filament of the lamp is 80 centimeter from the screen. Everyone, the filament of the lamp, इसको ब्रेक करो, वो सुनाई नहीं दे रहा। फिलामेंट ऑफ द लैम्प क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट। द फिलामेंट ऑफ द लैम्प इज 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्क्रीन। स्क्रीन मतलब जहां पे क्या फॉर्म होती है? इमेज। मतलब आपको किसका डिस्टेंस दे रखा है? ये ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, तो अब समझो ये बीच में क्या है? लेंस। ठीक है, ये लेंस है, यहाँ इमेज बन रही है, यहाँ ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट टू लेंस इज U, राइट? इमेज टू लेंस इज V। तो आपको ऑब्जेक्ट और इमेज में मतलब क्या गिवन है? U + V = 80 सेंटीमीटर। समझ में आई? Have you understood this, everyone? Online students? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. A converging lens forms an image of it on a screen, which is magnified 3 times. Yes. Magnification क्या है? Yes. Y - 3. No. Yes, the image is formed on a screen. Screen पे कैसी इमेज बनती है? Real and inverted. Right. तो रियल एंड इन्वर्टेड के लिए मैग्निफिकेशन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। आई बात समझ में? तो वो जो स्क्रीन वर्ड है वो हमें बता रहा है कि इमेज कैसी है? रियल है। राइट? तो छोटे छोटे वर्ड्स को पकड़ना है। इमेज कैसी है? रियल है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लेंस from the filament and the focal length of the lens. Right? Find the distance of the lens. क्या find out करना है? Distance of the lens from the filament. तो आपसे क्या पूछ रहा है वो? U पूछ रहा है। लेंस का डिस्टेंस फिलामेंट से, फिलामेंट क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का लेंस से डिस्टेंस क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
एंड क्या पूछ रहा है वो आपसे? फोकल लेंथ। कैसे करेंगे? मैग्निफिकेशन गिवन है, मैग्निफिकेशन इज v अपॉन u, -3 is equal to v upon u, right? So v is equal to -3u. Pariyul, v is equal to -3u. क्या v किसके इक्वल हो गया? -3u. अब इसको इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो? कर सकते हो नहीं कर सकते हो? अब सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1. v की वैल्यू u प्लस -3u equals to 80, -2u equals to 80. u is equal to -40 सेंटीमीटर. u की वैल्यू क्या आ गई? -40 सेंटीमीटर. पीछे दिख रहा है? अर्चित दिख रहा है बेटा? नाउ u is equal to -40 सेंटीमीटर. u किसके इक्वल हो गया बच्चा? -40 के. तो u हमारा आ गया, v हमारा क्या हो गया? क्योंकि f चाहिए, v is -3u. तो -3 into -40 which is equal to +120 सेंटीमीटर. आई बात समझ में? तो अब हमें क्या निकालना है? f. क्या निकालना है? f. तो लेंथ फॉर्मूला यूज करें? चलो करो, अब साथ साथ करो जल्दी से. कर लो, मेरे लिए कर रहे हैं क्या? इसका इंटरप्रिटेशन का भी बना लो फिगर, पूरा क्वेश्चन कर लो. मीका, आप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन नाउ? इसमें नहीं नहीं, इनमें कहीं तो एरर्स भी लगनी. क्वेश्चन सही देख रहे हो? नहीं गलत है.